Welcome to our new series of video lectures. In this series, we will discuss a drama. The title of the drama is The Doctor's Dilemma, a Tragedy. And the writer, the dramatist of this drama is George Bernard Shaw. So let's get started. This is going to be an introduction to the entire drama. And in this, we will be having a brief overview of this uh, beautiful, brilliant satire by G.B. Shaw. So, as we know that it is a drama that we know, 5 acts. This drama has got 5 acts, and there is an epilogue by Shaw. Now, what does this mean? Uh, Here, I would like to elaborate on this 5 act thing, that most of the text, most of the versions of the text which is available online shows or says that there are 4 acts, and the text also does not have epilogue by Shaw. However, this is a detail I have taken from after quite a research, that there are not 4 acts, there are 5 acts as it is given in the text. And the epilogue by Shaw, I'm not able to find it online as of now, but my research is on as to where is the epilogue, so I can just look into it and talk about it as well. So as of now, we can say that there are 5 acts and there is an epilogue by Shaw. It was performed in 1906. It was published in 1911. What is the genre of this write-up, this text? It is a satire, and it is a satire on medical profession, the doctors. So, what is it about? Now, here we could say that this is about, the first is the moral dilemmas. These moral dilemmas, what does it mean? हमारी morality, हमारे ethics, हम सोचते हैं कि हम क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए. Dilemmas जो शब्द है, इसका मतलब है जब हम दो चीजों के बीच में एक निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम बीच में खुद को फंसा हुआ पाते हैं कि भाई दो चीजों के बीच में हम फंस गए हैं, पिस रहे हैं, इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं. वहां पे हमारी मोरालिटी आ जाती है, मोरालिटी कम्स देयर. सो इट इज अ डिलेमा व्हेन वी आर कॉट बिटवीन टू थिंग्स, the right or the wrong, or you could say that between two choices we have, two or maybe multiple choices, when we are stuck up there, then that creates a dilemma, it creates a confusion. What do we do, where do we go? So this play shows that moral dilemma. What is it further? What is this moral dilemma? How is it created in the play? It is created by limited medical resources. What does it mean? That medical resources जो हैं वो लिमिटेड है. फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 दवाई है लेकिन पेशेंट 200 है, तो 200 पेशेंट ज्यादा है और दवाइयां लिमिटेड है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे किस पेशेंट को कौन सी दवाई मिलेगी? कैसे आप डिसाइड करोगे कि किस पेशेंट को दवाई बिल्कुल नहीं मिलेगी? तो ये लिमिटेड मेडिकल रिसोर्स हो गया है ना, और उसी से मॉरल डिलेमा क्रिएट होता है. So the moral dilemma is created by the limited medical resources. Next is the conflict between. Conflict means दुविधा, अनबन, दोनों के बीच में जो जंग चल रही है, किस किस के बीच में जंग चल रही है? What is this conflict between? What are the two things it is between? Business versus vocation. Here, when we say business, we mean any such task which has got profit as a motive. That is how we define capitalism.
a transaction in which we are only looking at our profit motive. So that is a business. Second is the word vocation. Vocation का मतलब something that you enjoy doing, something that you like doing, or some kind of a the profession you are in. Vocation. So there is a conflict between the two. That should you do it like a business? Should you use your profession like a business? That I have to see, let's say I'm a doctor and I have to decide, is there a benefit I have in it? If there is a benefit or I'm getting some kind of profit, only then I will go ahead and cure the patient, or I will do some action only when there is a benefit. Whereas if it is vocation, then I will think that, oh, I'm a doctor and this is my duty, so I'm going to go ahead and do this. I'm not thinking about the profit motive. I'm not looking at it as a transaction. That if I'm going to do this, what am I getting in return? That becomes a business. But if I just do it as my duty, of course I will get a fee payment, but then the fact that it is my profession and I'm doing is what drives me further. Not the thought doesn't come to me that why should I do it? I will do it only if I get some kind of a return. तो बिजनेस और प्रोफेशन और वोकेशन में जो अंतर है, उसके बीच का जो द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट जो हम कहते हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो द्वंद है दो चीजों के बीच में. बिजनेस हो जाता है व्यापार. वोकेशन मीन्स जो मेरा पेशा है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है, कि मैं कौन सी चीज को ज्यादा तवज्जो देती हूँ, महत्व देती हूँ. बिजनेस, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो उसमें लाभ और मुनाफा देखते हैं. और वोकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा जो काम है, मेरा कर्तव्य है, मैं वो करूं. ये सही है कि हम जो काम कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें कोई ना कोई ग्राहक मिलेगा तो हमें पेमेंट भी मिलेगा. लेकिन हमारे दिमाग में ये छाया नहीं हुआ है कि भाई पेमेंट मिलेगा तभी हम काम आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, पेमेंट आता रहेगा, वो अलग बात है, वो भी जरूरी है, लेकिन वो एक डोमिनेंट फैक्टर नहीं है. वो इस चीज को डोमिनेट नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता. आगे हम देखते हैं मॉलियर्स ली मैलेडे इमेजिनेयर. ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है. शायद मेरा फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन काफी इंप्रूवमेंट मांगता है, लेकिन ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, why have I written it here, that Molière's I think it is I'm not sure how it's pronounced, but you can see it here, you can read it here. This is a drama he wrote in the year 1673, the 17th century. And in this drama, he has made fun. He's mocking the medical profession. It is a satire. So in the drama's history of drama, the last time there was a satire on medical profession was when this drama by Molière came in the year 1673. So after this has come this drama, The Doctor's Dilemma by G.B. Shaw. तो मॉलियर एक फ्रेंच राइटर थे जिन्होंने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम है ली मैलेड इमेजिनेयर. 1673 में था ये, और ये एक तरह का व्यंग है. सटायर इज व्यंग. व्यंग है किसके ऊपर है? डॉक्टर्स के ऊपर है, मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर है, एक व्यंग है. तो डॉक्टर्स डिलेमा जो हमारा आज का ये वीडियो है जिस ड्रामा के ऊपर, इस ड्रामा के पहले 1673 में आया है, जो सबसे बड़ा माना जाता है व्यंग ऑन मेडिकल प्रोफेशन. देखो गैप कितना है, 1673 और आज हम 2026 की बात कर रहे हैं जब हम इसको पढ़ रहे हैं. और ये ड्रामा लिखा गया फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी का जो पहला डेकेड था तब लिखा गया है, 1900s है ना, परफॉर्म किया गया है ना.
So this is what you have to remember about main thing about this drama. Let's move on to our next slide. Let us look at the summary now. थोड़ा सा समरी को देख लेते हैं भाई, किसके बारे में है, क्या होता है। हमें पता है मेडिकल है, मगर आगे क्या होता है मेडिकल में। ये आप देखो बैकग्राउंड में पिक्चर बनी हुई है। ये मैंने पिक्चर ली है, एक अच्छी सी मुझे वेबसाइट पे मिल गई थी। शॉ का फेस्टिवल हुआ है, यहाँ पर एक तराजू है और तराजू में दो चीजें रखी हैं। एक तरफ दवाई है और एक तरफ पैसा है, कैश है ये। तो आप किसको ज्यादा दोगे, वही आ जाता है बात कि बिजनेस को। ये कैश जो है ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और दवाई जो है वो वोकेशन को रिप्रेजेंट करती है, प्रोफेशन को, डॉक्टर का जो पेशा है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो तराजू में दोनों चीजें रखी है और कौन सा पलड़ा भारी है। और ये तराजू जो है ये दिखाती है डिलेमा, कॉन्फ्लिक्ट, जो मन में द्वंद चल रहा है, मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं, इसको दूं, और कौन सा पलड़ा भारी है, ये चीज दिखाता है। मेडिकल डॉक्टर एक, अच्छा पहला पॉइंट है कि इस प्ले में, इन द प्ले अ मेडिकल डॉक्टर हैज डेवलप्ड अ न्यू क्योर फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक काफी जानलेवा डिजीज होती थी इन द इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडी जगह जहाँ पे होती है। इट इज रिलेटेड टू योर लंग्स। लंग्स जो है, फेफड़े हैं, उनसे रिलेटेड है। और उससे कई बार जान भी चली जाती थी। इसको कंजम्पशन भी कहते थे पुराने जमाने में, जबकि ये बात है क्योंकि ठंड के कारण फेफड़ों में काफी प्रॉब्लम हो जाती थी, डिजीज हो जाता था, इन्फेक्शन हो जाता था। सो एक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, ही हैज डेवलप्ड अ न्यू क्योर फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो उसने ट्यूबरक्लोसिस, टीबी भी कहते हैं इसको, ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक नया ट्रीटमेंट, एक नया इलाज बनाया है, डेवलप किया है, इजाद किया है, निजात किया है। आई थिंक हिंदी का वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन डेवलप किया है एक मेडिकल डॉक्टर ने। पहला पॉइंट तो ये है। He can only treat 10 patients at a time. So now this doctor, he can treat only 10 patients because he has limited staff and limited resources. And he is reluctant, but he decides to treat an additional patient. However, he has to choose, make a difficult choice. तो ये जो डॉक्टर है उसने टीबी का जो इलाज निकाला है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि एक बार में ये सिर्फ 10 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट, इलाज कर सकता है, 10 पेशेंट्स का। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास मेडिकल रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास लिमिट है, स्टाफ की भी कमी है, रिसोर्सेज की भी कमी है। तो एक बार में वो सिर्फ 10 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर सकता है। He is faced with a difficult choice. अब उसके सामने एक बहुत मुश्किल दुविधा है, दुविधा ही कह लोगे, मुश्किल है, दुविधा है। क्या है? उसे चूज करना है, उसे एक अपना डिसीजन देना है दो व्यक्तियों के बीच में। वो दो व्यक्ति क्या है? पहला है एन आर्टिस्ट विद मोरालिटी इश्यूज। द फर्स्ट इज एन आर्टिस्ट विद मोरालिटी इश्यूज, एक ऐसा कलाकार जिसके एथिक्स नहीं है, मॉरल्स नहीं है। और दूसरा वर्सेस अ सेल्फलेस मेडिकल कॉलीग, एक उसी का कॉलीग जिसके साथ वो काम करता है, उसका जो खुद भी डॉक्टर है, सेल्फलेस है, मतलब वो अपने बारे में छोड़कर बाकी सबके लिए सब कुछ करता है, सिर्फ खुद के लिए नहीं करता है। तो वो, इसलिए वो सेल्फलेस है। एक ऐसा व्यक्ति, और दूसरी तरफ एक ऐसा कलाकार है जिसके एथिक्स ही नहीं है, उसका अपना कोई ईमान ही नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है उसकी।
So he has to choose between treating his medical colleague, or he can treat an extremely gifted artist with a moral beliefs. Now, what is the dilemma? The dilemma, अब dilemma यहाँ पे क्या आ जाता है? सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, ये चीज हमने देखा कि ये आर्टिस्ट है जिसके मोरालिटी इश्यूज है. एक तरफ हमने देखा एक सेल्फलेस मेडिकल कॉलीग है, एक मेडिकल डॉक्टर है, इसका खुद का दोस्त है जो सेल्फलेस है. दोनों में से किसको चुने? ये बात तो है, ये तो डिलेमा है ही. लेकिन इससे भी बड़ा एक और एंगल क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर है, जो ये मेडिकल डॉक्टर है जिसने नया इलाज बनाया है टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, उसे आर्टिस्ट की जो वाइफ है उस पे इस डॉक्टर का, मेडिकल डॉक्टर का दिल आ जाता है. ही इज इन लव. उसको लगता है आई एम इन लव विद द आर्टिस्ट वाइफ, एंड the doctor's decision is complicated because he is in love with the artist wife, and he is tempted to let the patient die in order to court his widow. तो डॉक्टर सोचता है कि अरे, अगर मैंने इस आर्टिस्ट को ट्रीट नहीं किया तो इसकी तो डेथ हो ही जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, इसको मैंने इलाज नहीं किया तो. और इसकी जो वाइफ है, जो इतनी सुंदर है, जो मुझे इतनी पसंद आ गई है, हो सकता है इसकी डेथ के बाद मैं उससे शादी कर पाऊं. ऐसा विचार आता है किसके मन में? मेडिकल डॉक्टर के मन में. और ऐसा ही विचार जो आता है, इसी को कहते हैं सब्जेक्टिविटी. मतलब कि उसकी पर्सनल, मेडिकल डॉक्टर की पर्सनल इमोशंस आ गए हैं इस कहानी में, इस फैसले में, इस डिलेमा में, तभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है. ये कहलाएगा सब्जेक्टिविटी. मतलब कि उसने अपनी पर्सनालिटी और अपने इमोशंस को इसमें बीच में ले आया है. वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मतलब जिसमें हम अपनी पर्सनालिटी का कोई भी चीज अपने फैसले में नहीं लाते हैं. इन अदर वर्ड्स, सरल भाषा में हम कहें तो हम एक ऐसा निर्णय लेते हैं, एक ऐसा फैसला लेते हैं जो हमारी, जिसमें हम किसी पक्ष और पक्षपात नहीं करते. हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक, अपनी पसंद नापसंद को अलग रखते हैं, और किसी भी चीज को हम बिल्कुल उस नजर से देखते हैं जैसे निष्पक्ष एक व्यक्ति देखता है. उस नजर से देखकर उसका फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं. ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिविटी. तो डिलेमा जो डॉक्टर के सामने है वो है सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, तो ये मैंने छोटा शॉर्ट सी समरी आपको बता दी है. With this we come to the end of our video. It was a small introduction telling a little bit about The Doctor's Dilemma, a Tragedy by G.B. Shaw. In the next part, part 2, we will look at the context, historical, political and social, as well as we will have a look at the author's background. तो अगले पार्ट में हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड मतलब इतिहास क्या था, पॉलिटिकल एंड सोशल, और ऑथर का बैकग्राउंड. I hope this video was a help. You got some use out of it, and enjoy. If you have any question, then you can put it in the comment box. I'll get back to you. And I'll end this video by saying, as always, happy learning.